નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ। જૈન મુનિરાજ મહાભદ્ર વિજયજીના કઠિન ગણાતા સિદ્ધિ તપના પારણા યોજાયા। પ્રકાંડ જૈન સાહિત્યકાર ઉત્તમ છેડાએ શાસન પ્રભાવક આચાર્યોના ઇતિહાસનું વર્ણન કર્યું। 106 વર્ષના તપસ્વી વિનયરત્ન વિજયજી મહારાજે નિશ્રા પ્રદાન કરી। જૈન ધર્મમાં જપ તપ અને વ્રતનો ગીતાર્થ ગુરુ ભગવંતોએ વિશેષ મહિમા બતાવ્યો છે। વલ્લભસુરી સમુદાયના વર્તમાન ગચ્છાધિપતિ આચાર્ય ધર્મધુરંધરસુરી મહારાજ લાલબાગ જૈન સંઘમાં ચાતુર્માસ બિરાજમાન છે। એમના એન્જિનિયર શિષ્ય મહાભદ્ર વિજયજી મહારાજે જૈનોમાં કઠિન ગણાતું સિદ્ધિ તપ કર્યું, જેઓના પારણા રવિવારે લાલબાગ જૈન સંઘના તેજપાલ સોમચંદ શાહે ગુરુદેવના પારણાનો લાભ લીધો। આ દરમિયાનમાં જૈન અગ્રણી દીપક શાહે જણાવ્યું કે હરિયાણાના અંબાલા ખાતે વિશ્વનું પ્રથમ તમામ 84 ગચ્છના શાસન પ્રભાવક આચાર્ય ભગવંતોનું વિશાળ જૈન મંદિર નિર્માણના અંતિમ પડાવ પર છે અને ટૂંક જ સમયમાં તેની પ્રતિષ્ઠા ગચ્છાધિપતિ આચાર્ય ધર્મધુરંધરસુરી મહારાજની નિશ્રામાં થવાની છે। ત્યારે આ કયા કયા શાસન પ્રભાવક આચાર્ય ભગવંતો છે જેમની મૂર્તિની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા 11 માર્ચ 2027માં થવાની છે, તેમના જીવન ચરિત્ર પર મુંબઈના જૈન શાસનના સિરમોર સાહિત્યકાર શ્રી ઉત્તમ છેડાએ 21થી વધુ આચાર્ય ભગવંતોનું વિવેચન કર્યું હતું અને કાર્યક્રમને વધારે જીવંત બનાવવા જૈન હાઉસી પણ રમાડવામાં આવી। વિજેતાઓને ઇનામ રત્નત્રયી આરાધના ટ્રસ્ટના પ્રમુખ કૌશિક શાહે તેનો લાભ લીધો। આજના કાર્યક્રમમાં જૈન સંગીતકાર દીપ શાહની મંડળીએ નવા બનાવેલા સ્તવનોની રમઝટ બોલાવી અને લોકોને ભક્તિ ભાવનાથી તરબોળ કરી દીધા હતા। આજના કાર્યક્રમમાં વડોદરાના જુદા જુદા સંઘના ટ્રસ્ટીઓ તથા લાલબાગ જૈન સંઘના પ્રમુખ નરેન્દ્ર દોશી, વિમલનાથ જૈન સંઘના જયદીપ શાહ, અંબાલા તીર્થી એડવોકેટ સિકંદરલાલ જૈન, આત્માનંદ જૈન મહાસભાના પ્રમુખ નેમિચંદ શાહ, ઓસ્ત્રા તીર્થના જીતુભાઈ શાહ, લુધિયાણાના હર્ષભાઈ જૈન સહિત ભારતભરમાંથી મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। मैं हर जगह पर बोलता हूँ, मैं धर्मधुरंधर जी के पास कार्यक्रम करने गया था, हर जगह बोलता हूँ। वैसे शास्त्रों में लिखने जैसा ये इतिहास नहीं है कि वो पाकिस्तान कैसे गए थे, मगर सुनना जरूर कि वो पाकिस्तान कैसे गए थे। सुनो, शरीर में कहीं ना कहीं कोने में खुशी थी नहीं, डर था, और उस डर और संकोच में अपने गुरुदेव की चरण की स्पर्शना के लिए ये बंदा निकल पड़ा जिसको आज भी नाम से नहीं काम से भी धर्मधुरंधर कहा जाता है। 84 गज के 108 शासन प्रभावक आत्माओं की रचना, उनके स्वरूप को देखने के लिए कि भाई स्वरूप कैसा लेगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी लगी, इन्होंने शास्त्र पढ़े हैं। आज भी सुधर्मा स्वामी की पाठ के ऊपर से धर्मधुरंधर सुरेश्वर जी महाराज से मैं इनको थोड़ा भी नहीं पहचाना। नमस्कार दर्शक मित्रों, आज लालबाग जैन संघनी अंदर वल्लभसुरी समुदायના વર્તમાન ગચ્છાધિપતિ પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ધર્મધુરંધરસુરી મહારાજ સાહેબની નિશ્રામાં એક સરસ મજાનો કાર્યક્રમ કરવા માટે જૈનોના એવા ખ્યાતનામ સાહિત્યકાર, સંગીતકાર અને સરસ મજાના ભાવોથી વાતાવરણ ખડું કરી દે એવી જેમને ક્ષમતા છે એવા મુંબઈના ઉત્તમભાઈ છેડા ખાસ વડોદરા જૈન સંઘમાં પધારે છે। આપણે એમની જ સાથે વાત કરીએ। ઉત્તમભાઈ, અમારા દર્શક મિત્રોને જણાવો જે શાસન પ્રભાવક આચાર્ય ભગવંતોનું વિશ્વનું પહેલું મંદિર બની રહ્યું છે, એની અંદર કયા કયા આચાર્ય ભગવંતો અને આખું મંદિર નિર્માણ કેવી રીતે થવાનું છે એમાં દર્શક। प्रणाम, जय जिनेन्द्र। अब मेरे साथ यहाँ पर श्री लालबाग जैन संघ मांजलपुर वडोदरा के प्रतिनिधि भी हैं, और यहाँ पर आचार्य भगवान धर्मधुरंधर सुरेश्वर जी महाराज साहब की पावन दृश्य चातुर्मास में प्राप्त है। उनकी कृपा दृष्टि से हरियाणा अंबाला में जो महान तीर्थ निर्माण होने जा रहा है, उनके प्रतिनिधि भी मेरे साथ हैं। अभी तक जिन शासन में ऐसा कहीं पर नहीं हुआ हो, ऐसा कार्य ये हरियाणा के अंबाला महातीर्थ में होने जा रहा है, जहां पर परम प्रतापी परमात्मा भी विराजमान है। इंद्रदीन सुरेश्वर जी और हमारे रत्नाकर सुरेश्वर जी का गुरु मंदिर है। वहां पर हमारे जिन शासन के प्रभावक महापुरुष, जिनको हम गणधर कहे, उनके बाद की परंपरा के जो साधु महात्मा हैं, जो श्रुत केवली थे, कलिकाल सर्वज्ञ थे, तो श्रुत ज्ञानी थे, ऐसे महान आचार्य भगवंत हो गए जिन्होंने हमको आगम ज्ञान दिया, शास्त्र ज्ञान दिया। हमारे जीवन में क्या, हमारे घर में एक नियम रहता है, हम 5वीं पीढ़ी के बाद हमारे बाप दादा को भूल जाते हैं। इस तरह शासन के इस समय को आगे बढ़ाते हुए लोग ने काफी कुछ सीखा, काफी कुछ धर्म पाया, काफी कुछ ज्ञान पाया, लेकिन हमारे जिन शासन की नींव में जो परम प्रभावक बन के बैठे हैं, महान प्रभावक आचार्य, उनको कई लोग भूल चुके हैं। ऐसे
सबसे लास्ट मोक्षगामी जम्बू स्वामी थे। उसके बाद लास्ट जो श्रुत ज्ञानी थे वो हमारे भद्रबाहु स्वामी थे, जिनको 14 पूर्वधर प्राप्त थे। एक चोर भी हमारे जिन शासन में सुधर्मा स्वामी की पाठ परंपरा में प्रभाव बन के आचार्य बने। ऐसे कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य थे। ऐसे महान महान कई नाम हैं। हीर सूरी जी, हीर भद्रसूरी जी, वृद्धवादी जी, सिद्धसेन दिवाकर जी, इनके बारे में जितना जानो जितना पहचानो आत्मा का कल्याण होगा। जिन शासन का कल्याण होगा हमारी मानसिक बुद्धि सुधर जाएगी। उन आचार्यों को शास्त्रोक्त पढ़कर उनके शब्दों के अनुसार उनकी प्रतिमा जी बनाकर आचार्य धर्म धुरंधर सुरेश्वर जी, ऐसे 84 गज के 108 आचार्य परमात्मा जो महापुरुष है, जो शासन प्रभावक है, उनकी मूर्ति उनकी प्रतिमा अंबाला हरियाणा के अंदर इस पावन भूमि पर 108 आचार्य के मंदिर बनाकर उनको स्थापित करने जा रहे हैं आने वाली 11 मार्च 2027 को। सोचिए सर, विश्व में हम परमात्मा को भज लेते हैं, वर्तमान गुरु को वंदन कर लेते हैं, लेकिन इनके बीच में जिन्होंने जिन शासन को संभाला है, परमात्मा भविष्य और भूत और वर्तमान में जुड़े हुए हैं। और वर्तमान गुरु यानी कि जो परमात्मा हो गए और जो गुरु है उसके बीच की जो मझदार है वो शासन प्रभावक कल्याणकारी महापुरुष आत्मा है। उनकी प्रतिमा को अब हम देखेंगे, उनके बारे में अब सुनेंगे और एक साथ 84 गज के 108 आचार्य को सामूहिक वंदन करने का अवसर आने वाले समय में अंबाला तीर्थ हरियाणा में हमको मिल रहा है, धर्म धुरंधर सूरी की कृपा से। जय हो। अब शुद्ध भावना भाव कि जल्दी से जल्दी 108 आचार्य अंबाला की पवित्र धरा पर विराजमान हो और शासन में ये एक यशस्वी कीर्तिमान गुरु मंदिर का निर्माण हो जो इतिहास में अमर हो जाए। जय गुरुदेव, जय जिन शासन। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આજે લાલબાગ જૈન સંઘની અંદર એક સરસ મજાનો કાર્યક્રમ વર્તમાન ગચ્છાધિપતિ વલ્લભસુરી સમુદાયના ગચ્છાધિપતિ આચાર્ય ધર્મધરેન્દ્ર સુરી મહારાજ સાહેબ ચાતુર્માસ બિરાજમાન છે. એમની સાથે એમના જે શિષ્ય છે મહાભદ્ર વિજયજી, આ મહાભદ્ર વિજયજી મહારાજે સિદ્ધિ તપની સુંદર આરાધના કરી. એક ઉપવાસ, એક બેસનું 2 ઉપવાસ, એક બેસનું 3 ઉપવાસ, એક બેસનું 4 ઉપવાસ, આવી રીતના આ ખૂબ કઠિન ગણાતું તપ છે. અને આ તપની આજે એ તપસ્વીના મહાભદ્ર વિજયજી મહારાજ સાહેબના તપના પારણાનો કાર્યક્રમ અને સાથે ધર્મધુરંધર મહારાજ સાહેબ એક આખા વિશ્વનું મોટામાં મોટું જિનાલય દેરાસર બનાવી રહ્યા છે હરિયાણાના અંબાલા ખાતે. આપણી સાથે અંબાલા જે તીર્થ બનવાનું છે એમના ટ્રસ્ટી એવા સિકંદરલાલજી જૈન લુધિયાણાના છે અને આપણી સાથે નિમિચંદજી જૈન જે ઉત્તરીય ભારત આત્મવલ્લભ જે સંસ્થા છે એના માનनीय अध्यक्ष છે. આપણે सिकंदरलाल जी ने पूछिए, सिकंदरलाल जी ये जो मंदिर बन रहा है वो क्या है और आज उत्तम छेड़ा का कार्यक्रम क्या है? हमारा सौभाग्य कि हमारा जन्म जैन कुल में हुआ और सौभाग्य हमें पंजाब का क्षेत्र मिला। पंजाब जो एक ऐसा क्षेत्र है जिसने जैन धर्म में सुप्रसिद्ध हुए महान आचार्य श्रीमद विजयानंद श्रीश्वर जी महाराज साहिब, प्रसिद्ध नाम आत्माराम जी महाराज साहिब को जन्म दिया। और उसी धरा पंजाब के साथ जो जुड़ा हुआ क्षेत्र है, जो मूल से पंजाब का क्षेत्र है, लेकिन राजनीतिक कारणों के कारण हरियाणा के रूप में जो धरती विकसित हुई उसका अंग बना है वो है अंबाला क्षेत्र। और अंबाला जैन नगरी है जहां हमारे पंजाब के श्री श्रीमद विजय वल्लभ श्रीश्वर जी महाराज साहिब ने बहुत शिक्षण संस्थाओं का निर्माण करवाया है। और ये क्षेत्र एक तीर्थ बन गया, कारण कि उस पाठ परंपरा में, गुरु वल्लभ की पाठ परंपरा में, आत्म वल्लभ की पाठ परंपरा में गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्रीमद विजय इंद्रदेन श्रीश्वर जी महाराज साहब को काल धर्म हुआ। उस कारण से वहीं पर उनको अग्निदाह संस्कार दिया गया और वो धरा जो है एक तीर्थ के रूप में पवित्र बन गई। अंबाला
विश्व में चमकेगा ऐसा आभास किसी ने नहीं किया था। लेकिन वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्रीमद विजय धर्म धुरंधर सुरीश्वर जी महाराज साहिब, जो नाम के धुरंधर नहीं, धर्म के धुरंधर भी हैं और अध्ययन के धुरंधर भी हैं, उनकी ज्ञान पिपासा ने उनको बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन करवाया और उसी में से ज्ञान लेकर उन्होंने इस तीर्थ को केवल गुरु धरती ही नहीं, गुरु स्मृति ही नहीं, लेकिन आज संप्रदाय के किसी भी भेदभाव के रहित उन्होंने 108 जो हमारे जैन धर्म में आचार्य हुए हैं, जिनकी कृपा उस समय भी बरसी और आज तक भी बरस रही है, तो उनकी धरा बनने जा रहा है। और वहां पर विश्व में पहली बार ऐसे 108 महान आचार्यों की कृतियां, उनकी प्रतिमाएं स्थापित होने जा रही हैं और ऐसा उल्लेख जैन धर्म के इतिहास में आपको विश्व में नहीं मिलेगा। ये अंबाला की धरती है। इनका कब प्रतिष्ठा होने वाला है? और उसकी प्रतिष्ठा गुरुदेव ने जैसा दिव्य दृष्टि में भांपा है, वर्ष 2027 में होने जा रही है। और अभी से हम सारे विश्व को आमंत्रित करते हैं कि ऐसा अनूठा अवसर, ऐसा अद्भुत अवसर, ऐसा योग्य अवसर किसी भाग्यशाली के भाग्य में लिखा है और आप सभी वो भाग्यशाली बन सकते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सिकंदर लाल जैन। कहाँ से? मेरा जन्म लुधियाना में हुआ और मेरे पिताजी गुरु वल्लभ के भक्त थे और उन्हीं के आशीर्वाद से मेरे को इन गुरुओं की कृपा प्राप्त हुई है। बोलो विजय वल्लभ श्री महाराज की जय।